In this video, we are going to study the typical sums on dot product, part 2. Now, in this part, we are going to basically focus on magnitude based sums. Now, if you have gone through the introduction of dot product well, then magnitude का मतलब होता है square. Just keep this in mind, okay? And we have related formulas for that. So, let's start with the question number 1 in this. Find the length of longest diagonal of a parallelogram constructed on phi a bar plus 2b bar and a bar minus 3b bar if it is given that mod of a bar is equal to 2 root 2, mod of b bar is equal to 3, and angle between a bar and b bar is pi by 4. Now you might say that those who have referred the previous video, you might say that this sum has been taken in the previous video, but in that sum I have asked you to find angle between diagonals. Now in this sum the difference is I am asking you the length of longest diagonal, मतलब magnitude पूछ रहा हूँ, ठीक है. So it is more or less like a previous sum only. There we have gone for dot product. Here we'll find the magnitude. Now if you recall, for the word parallelogram, if I give you sides and if I want to talk about diagonals, we assume the sides. अगर आपको याद है तो ठीक है. So in the solution, let's do one thing. I'll say let p bar and q bar be the adjacent sides of parallelogram. Okay, so here can I say p bar is equal to phi a bar plus 2b bar, first vector, and q bar is equal to a bar minus 3b bar. ठीक है. Now if I construct a parallelogram using p bar and q bar as adjacent side, what I find, this is my p bar, this is q bar. So which one is this diagonal? This is p bar plus q bar, बराबर ना. और ये diagonal कौन सा होगा? p bar minus q bar, बराबर. Now if I ask you which is the longest diagonal, okay, so longest diagonal according to you is diagonal, is it not? It would be mod of p bar plus q bar. Okay, but let me tell you, this thought is wrong. Okay, not always true. नाउ तुम बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, वाई इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, लॉन्गेस्ट डायगोनल तो दिख रहा है यहाँ पे. सो इफ़ यू सी हियर, लेट अस टेक टू डायग्राम. दिस इज़ योर फर्स्ट डायग्राम वेयर दिस इज़ पी बार, दिस इज़ क्यू बार, ओके, एंड दिस वेक्टर इज़ पी बार प्लस क्यू बार, इजंट इट. सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट डायगोनल इज़ p bar plus q bar. Okay, but then just imagine if your parallelogram is like this, that is obtuse angle parallelogram. I hope you are understanding. ठीक है. So this vector is p bar, this vector is q bar. अब अगर आप देख रहे हो तो ये आपका p bar plus q bar होगा, which is not the longest diagonal. The longest diagonal would be this one, which is p bar minus q bar. मतलब हमारे में एक मिसकंसेप्शन होता है कि ऐड किया तो it would give up the larger value. ओके, यू आर राइट. दो नंबर को अगर ऐड करते हो, पॉजिटिव नंबर को, तो आपका नंबर बड़ा होगा, बराबर. बट देन प्लीज़ रिमेंबर, दिस आर नॉट नंबर्स, दिस आर वेक्टर्स. ठीक है. तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट डायगोनल, ओके, इज p bar minus q bar. So I hope you are clear with this particular theory. Okay, so basically अगर आप देख रहे हैं तो वो डिपेंड किस पे करता है? एंगल बिटवीन p and q. Okay, so if it is acute, your longest diagonal is p plus q. If it is obtuse, it is p minus q. मतलब अगर ये सब में हमको ये डिसाइड करना पड़े कि acute एंगल है कि obtuse एंगल, पहले वो डिसाइड करेंगे and then we can find the length of the diagonal. But rather than going for angle, let's do one thing. हम दोनों मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं. Okay, and then we find the वैल्यू, और जो बड़ा होगा वो दैट वुड बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल. तो एंगल निकालेगा मगजमारी नहीं है. ठीक है. सो हियर आई रिपीट व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, दैट लॉन्गेस्ट का मतलब p प्लस क्यू नहीं, आपको दोनों फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद p बार प्लस q बार पहले. सो इफ आई ऐड दिस टू वेक्टर्स, इज नॉट आई गेट 6a बार माइनस b बार. ओके, p बार माइनस q बार. इफ़ यू रिकॉल, इसको हमने नाम दिया था m बार और इसको नाम दे देंगे n बार. ठीक है. सो n बार इज इक्वल टू व्हाट? इट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे. इफ़ आई सब्ट्रैक्ट व्हाट आई गेट 4a बार
प्लस 5b बार। चलो यहाँ तक ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड मॉड ऑफ m बार। ओके, मॉड ऑफ m बार मतलब मॉड ऑफ 6a बार माइनस b बार। आई होप यू गेटिंग इट। ओके, अब p और q का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वो एक नोटेशन था। चलो मॉड दिखा तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, 6a बार माइनस b बार का स्क्वायर। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, इज नॉट आई गेट 36 मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 12 a बार डॉट b बार प्लस मॉड ऑफ b बार का स्क्वायर ना। अगर आप सम में देख रहे हो तो मुझे एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी राइट द डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। सो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी गिवन, π/4 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। चलो सबका वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। सो व्हाट आई गेट हियर 36 इंटू 2 √2 का स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 12 इंटू 2 √2 इंटू 3 इंटू कॉस 45 इज 1/√2 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका √2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो √2 गया, व्हाट आई गेट 36 इंटू 8 माइनस 12 2 ज़ा 24 इंटू 3 प्लस 9। ठीक है, सो इट इज़ 288 माइनस 72 प्लस 9। ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू हियर, 272 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 225। नाउ दिस इज़ योर मॉड ऑफ m का स्क्वायर, प्लीज़ ध्यान रखना। ओके, सो व्हाट इज़ मॉड ऑफ m, मॉड ऑफ m बार इज़ 15। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया। चलो ठीक है, अब कंसिडर लेट अस टेक मॉड ऑफ n बार। ओके, सो इफ़ आई टेक मॉड ऑफ n बार इज नॉट, इट इज़ मॉड ऑफ 4a बार प्लस 5b बार बराबर। चलो स्क्वायर करते हैं। सो मॉड ऑफ n का स्क्वायर वुड बी वॉट, 4a प्लस 5b का स्क्वायर। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 16 मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 22 ज़ा 40 a बार डॉट b बार प्लस 25 मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, लेट अस पुट द वैल्यू, व्हाट आई गेट हियर 16 2√2 का स्क्वायर बराबर प्लस 40 इंटू वॉट, हियर इट इज़ 2√2 इंटू 3 इंटू कॉस 45, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, इट इज़ 1/√2 बराबर ना, प्लस 25 इंटू 3 का स्क्वायर। √2 गेट कैंसिल बराबर, तो यहाँ पे आएगा 16 8 ज़ा प्लस 80 इंटू 3 ज़ा बराबर प्लस यहाँ पे आएगा 25 इंटू 9 ज़ा। ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट हियर 128 प्लस 240 plus 225. Okay, so if I add it, 8 5 13 1 4 5 6 7 8 9 and 2 3 4 5 593, this is the value of mod of n square. So what I get, mod of n का वैल्यू आएगा रूट ऑफ 593। now अगर आप समझ रहे हो तो रूट ऑफ 584 okay is 20, just a sec, रूट ऑफ 625 अगर आपको आइडिया तो 25 होता है बराबर ना। एंड व्हाट इज़ रूट ऑफ सॉरी 24 का स्क्वायर इज़ नॉट, इट इज़ 576 बराबर ना। सो द वैल्यू इज़ बिटवीन देम, तो कैन आई से हियर इट इज़ नथिंग बट योर वैल्यू बिटवीन 24 एंड 25, ओके, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 15। तो कैन आई नाउ से दिस इज़ okay, so can I say here आपका root sorry 15 is less than root of 593, therefore length of the longest diagonal okay, so here 15 is less than root 593, so can I say therefore the length of longest diagonal is, if you see, it is अंडर रूट ऑफ 593। और अगर आप देख रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ 593 किसका मैग्नीट्यूड निकला, p माइनस क्यू का, विच आई वॉज एक्सप्लेनिंग। ओके, तो यहाँ पे व्हाट द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज लॉन्गेस्ट डायगोनल किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन p एंड q। ठीक है, सो रादर देन फाइंडिंग एंगल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। okay, it says if a bar and b bar are two unit vectors, then find the greatest value of root 3 mod of a plus b plus mod of a minus b। ठीक है, now here in this sum द की वर्ड इज़ वॉट, ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब भी आता है हमारे दिमाग में इनइक्वालिटी आना चाहिए, मतलब यहाँ पे किधर ग्रेटर देन लेस देन कॉन्सेप्ट आएगा,
नंबर 2 किसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू चाहिए, अगर आप देख रहे हैं तो वी वांट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज √3 मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी। नाउ यहाँ पे हमने क्या देखा, मॉड बराबर मॉड इम्प्लाइज व्हाट, स्क्वेयरिंग, बट हियर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हियर वी हैव एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, सो डू नॉट स्क्वेयर डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, बिकॉज दैट इन दैट केस वी आर स्क्वायरिंग व्हाट, वी आर स्क्वायरिंग नंबर्स एंड नॉट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, डू नॉट स्क्वायर सेपरेटली, व्हाट यू डू इज टेक लैम्बडा इक्वल टू डैश एंड म्यू इक्वल टू डैश एंड देन स्क्वायर। ठीक है, सो ये वाला नोट पॉइंट अगर आप समझ गया तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर सो लेट्स स्टार्ट हियर इन द सोल्यूशन। Okay, we have got √3, let's say lambda is equal to √3 mod of a bar plus b bar। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो आई गेट 3 mod of a bar plus b bar का स्क्वायर। Let us simplify this, can I say lambda square is equal to 3, we know the formula, it is mod of a square plus 2 a bar dot b bar plus mod of b का स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो लैम्बडा स्क्वायर 3 ब्रैकेट 1 प्लस 2, कैन वी राइट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस 1 हियर। व्हाट इज़ 1 प्लस 1, इट इज़ 2, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 मॉड ए मॉड बी के जगह पे 1 1 आ जाएगा कॉस थीटा। नाउ वी हैव डन दिस टाइप ऑफ सम, इफ़ यू कैन रिकॉल 2 को कॉमन लिया तो बाहर 6 होगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री याद आ रहा है, 1 प्लस कॉस का पैटर्न इज़ व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर। इफ़ यू नो, इफ़ आई पुट थीटा हियर ऑन द अदर साइड, आई पुट थीटा बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो व्हाट आई गेट हियर 6 ब्रैकेट में 2 cos square theta by 2 and we finally got 8 cos square theta by 2। but please don't forget ये जो मिला वो lambda square है, अपने को lambda चाहिए, तो what is lambda, can I say 8 का square root is 2√2 और यहाँ पे आएगा cos theta by 2। this is your result number 1। ठीक है, सेम वे हम लोग सेकेंड पार्ट लेते हैं, दैट इज लेट म्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर। इनफैक्ट जिन्होंने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो इसका आंसर साइन थीटा बाई 2 में आता है, इफ़ यू कैन रिकॉल। ठीक है, सो यहाँ पे ओपन किया तो 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, दोनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, यहाँ पे आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस 1, 1 प्लस 1 को 2 लिख लिया, यहाँ पे आएगा 2 कॉस थीटा, बराबर ना, बिकॉज मॉड ए मॉड बी 1 है। आई कैन टेक 2 कॉमन, अगर मैं 2 को कॉमन लेगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, इट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इवेंचुअली आई गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बट डोंट फॉरगेट ये जो है वो म्यू स्क्वायर का वैल्यू है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू नाउ, इट इज़ 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, दिस योर रिजल्ट नंबर 2। नाउ वी वांट कंसिडर लैम्बडा प्लस म्यू चाहिए अपने को, बराबर। ओके, सो वी हैव, आई बेटा ऐसे कंसिडर लैम्बडा प्लस म्यू। नाउ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज़ 2√2 कॉस थीटा बाई 2, बराबर, एंड द वैल्यू ऑफ म्यू इज़ 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक समझा। now let's do one thing, let us take 2 common here। okay, so if I take 2 common, अंदर क्या बचेगा, √2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। okay, एक सेकेंड, let me just check the value here, what I got is 3 2 3 2 6 बराबर है। हाँ, we made one mistake here, if you see here this is not 8, if you see what I get here is 12, बराबर ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज 2√3 एंड नॉट 2√2। ठीक है, सो विद दिस लेट्स कम टू दिस अगेन, सो हियर व्हाट आई गेट 2√3, यहाँ पे अंदर √3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ एट दिस स्टेज आई एम वेरी श्योर जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ा होगा कैन रिकॉल वन थिंग, दैट वेन एवर वी सी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ sin and cos theta we multiply and divide by root of a square plus b square। कुछ याद आया? and if you recall I said this is one of the most important note point of trigonometry। so let's continue further। तो यहाँ पे आएगा lambda plus mu is equal to 2 तो बाहर है। okay, can we say multiply and divide by 2, यहाँ पे आएगा multiply and divide by root of √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ 4, दैट इज़ 2। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो बाहर मुझे क्या मिल जाएगा, ऑलरेडी 2 था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अंदर आएगा √3 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, नाउ
लेट्स डू वन थिंग, अगर √3 का वैल्यू अगर आप इमेजिन करते हो तो कैन आई से इट इज़ साइन में 60 डिग्री देता है, और 60 डिग्री मतलब π/3 बराबर, तो ये cos θ/2 हो गया। एंड यहाँ पे cos 60 मतलब cos π/3 sin θ/2। किसका फॉर्मूला ये, अगर आप देख रहे थे यहाँ पे मिक्सचर दिख रहा है, और मिक्सचर मतलब साइन ऑफ a प्लस बी दिख रहा है, ठीक है। सो विद दिस कैन वी राइट द फॉर्मूला एज 4 साइन ऑफ a प्लस बी। व्हाट इज a का वैल्यू π/3 जो एंगल साइन के साथ है, प्लस θ/2। नाउ आप बोलेंगे सर हमको लैम्बडा और म्यू थोड़ी निकालना था। नाउ आई एम कमिंग टू द क्रूशियल स्टेज हियर, वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला है। ओके, नाउ इफ़ यू सी हियर इन दिस, ये 4 तो हम बदल नहीं सकते, बट साइन इज देयर, तो कैन वी राइट दिस एज, हमको एंगल में इंटरेस्ट नहीं है तो कैन आई राइट दिस एज साइन अल्फा। नाउ वी नो दैट व्हाट इज साइन का रेंज, इफ़ यू नो साइन का रेंज इज -1 to 1। okay, so for maximum value is not we take sine alpha is equal to 1, and based on that we get lambda plus mu ka maximum value as 4 into 1, answer is 4. I hope everyone is clear with this particular concept. Okay, so it's one of the most important and interesting sum. Okay, इन MCQ इफ़ यू कैन जस्ट रिमेंबर प्लीज़, अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे आप चाहिए तो ये चीज़ बाहर कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव डन दिस 3 times नाउ। मॉड ऑफ a प्लस बी, उसमें अगर a और b यूनिट वेक्टर है तो इसका आंसर आता है 2 cos θ/2, याद रखना। ओके, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 2 sin θ/2। तो इफ़ यू सी दिस, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखने चाहता हूँ तो इसका आंसर क्या बोला मैंने, 2 cos θ/2। सो फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली जम्प टू हियर। ओके, लाइकवाइज लेट्स ट्राई दिस, कम ऑन, इसका आंसर क्या आएगा 2 sin θ/2, एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली जम्प टू दिस। ओके, एंड वंस दिस 2 रिजल्ट्स आर रेडी तो फिर उसके बाद स्पीड आ जाएगा आपका, ठीक है। सो MCQ वाइज ये बहुत लेंथी दिख रहा है, बट अगर आपने वैल्यूज़ ऐड कर दिए होंगे तो आपका काम हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली अगेन, इट इज़ ओनली फॉर द यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल वन मोर। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्वेश्चन, इफ़ a bar and b bar are 2 unit vectors, then find maximum value of √2 mod of a plus b plus mod of a minus b। चलो ठीक है, अब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। अब ये थोड़ा मैं MCQ स्टाइल से सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, इफ़ यू सी √2 mod of a plus b, ध्यान से देखना, इज़ नॉट √2 mod of a plus b में इसका वैल्यू आ जाएगा 2 cos θ/2 बराबर। सो इज़ नॉट, यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2 √2 cos θ/2 होगा, किसका वैल्यू, लैम्बडा का। सिमिलरली म्यू का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो क्या होगा 2 sin θ/2। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डिस्कस लैम्बडा प्लस म्यू बराबर, व्हाट इज लैम्बडा प्लस म्यू, 2 √2 cos θ/2 प्लस 2 sin θ/2 बराबर। नाउ व्हाट यू कैन टेक कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √2 cos θ/2 प्लस 2 प्लस sin θ/2। यहाँ तक समझा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन कॉस आया तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप देख रहे हो तो a का स्क्वायर मतलब 2, b का स्क्वायर मतलब 1, मतलब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो डू यू सी दिस, यहाँ पे हमको 2 √3 ऑफ ब्ला 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 मिलेगा, विच इज़ आइदर साइन या कॉस का फॉर्मूला, तो कहना है ये साइन अल्फा हो जाएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, सो आंसर इज 2 √3। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया हाउ टू डू दिस सेम सम इन अ फास्टर मैनर, ठीक है। बट आई रिपीट अगेन, ये आप तभी लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर होंगे। अगर यूनिट वेक्टर नहीं मेंशन किया तो देन यू कैन नॉट राइट दिस। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द थर्ड सम, एंड प्लीज़ इसका 2-3 बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Now this question says, let u bar, v bar and w bar be such that mod of u bar equal to 1, mod of v bar is equal to 2, mod of w bar is equal to 3, full stop, if the projection of v bar along u bar is equal to
the to projection of projection of W bar on U bar, comma, also V bar is perpendicular to W bar. Find mod of U bar minus V bar plus W bar. Okay. Now this one is not that tough sum. Let's start with the required. Required says find mod. तो मॉड दिखा तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी बताओ सोल्यूशन में. इज़ नॉट वी स्क्वायर इट, बट स्क्वायर करने के लिए दो साइड चाहिए कि नहीं अपने को. ठीक है, तो इन द सोल्यूशन लेट अस अज्यूम दिस मैग्नीट्यूड बराबर. सो लेट्स से मॉड ऑफ यू बार माइनस वी बार प्लस डब्ल्यू बार इज इक्वल टू लैम्बडा. ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं. लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड. सो व्हाट आई गेट, मॉड ऑफ यू बार माइनस वी बार प्लस डब्ल्यू बार का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर. चलो ठीक है. सो कैन आई से देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इंटू थर्ड वेक्टर प्लस 2 फर्स्ट इंटू थर्ड वेक्टर. ठीक है, सो दिस द एक्सपांशन. ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया. अब मुझे ये सब डिटेल्स चाहिए. तो सब में देखो हमको तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट अपने को डॉट प्रोडक्ट निकालना है. हाउ डू वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट. देखो वहाँ पे प्रोजेक्शन का कुछ बात किया वो लोग ने. ठीक है, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया. सिंस द साइन इज नेगेटिव हियर, प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया. सो व्हेन आई से दिस इनटू दिस आई नीड टू राइट माइनस साइन हियर, और यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा. ठीक है, सो हियर यू हैव नेगेटिव साइन. आई रिपीट, क्या करते हैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड, फिर दिस इंटू टू, बट साइन ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद गिवन. मॉड ऑफ यू बार का वैल्यू क्या दिया 1, मॉड ऑफ वी बार क्या दिया 2, मॉड ऑफ डब्ल्यू बार क्या दिया 3. चलो पहले 3 वैल्यूज़ मिल गए. फिर उन्होंने क्या दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, वी बार ऑन यू बार इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू बार ऑन यू बार बराबर. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, जो पीछे वो नीचे, याद आया, और नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर नहीं. सो डब्ल्यू बार डॉट यू बार अपॉन जो पीछे वो नीचे. ठीक है, सो वी गॉट दिस फार्मूला. अब ये फार्मूला में अगर आप देख रहे हो तो मॉड ऑफ यू बार कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू गेट, वी बार डॉट यू बार इज इक्वल टू डब्ल्यू बार डॉट यू बार. अब यहाँ पे एक पागल जैसा स्टेप मत करना. वी बार डॉट यू बार इक्वल टू डब्ल्यू बार डॉट यू बार कट, ऐसा नहीं होता है. ओके, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये कोई स्केलर नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ वन रिजल्ट वी गॉट इट. सो दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो वी डॉट यू, कम ऑन, डू वी हैव वी डॉट यू, येस. ओके, यू डॉट डब्ल्यू, डू वी हैव यू डॉट डब्ल्यू, येस. ये दोनों इक्वल है, तो अगर आप समझ रहे हैं तो ये माइनस ए प्लस है, तो ये तो कट हो जाएगा. एंड दैट इज़ हाउ वी यूज़ दिस रिजल्ट. ठीक है, चलो अब मेरा बचा वी डॉट डब्ल्यू. बट सब में ज़रा ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है आपका वी इज़ ऑल्सो, वी इज़ परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू बार. ठीक है, सो जैसा मैंने बोला परपेंडिकुलर, दिस आर द की वर्ड्स. ओके, सो परपेंडिकुलर, कौन किसको परपेंडिकुलर है, वी परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, देयरफॉर बी बार डॉट डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 0. सो ये आपका रिजल्ट नंबर 1, ये आपका रिजल्ट नंबर 2, ये आपका रिजल्ट नंबर 3, एंड ये अपना रिजल्ट ए. सो कैन आई से सब्सटीट्यूट 1 2 3, 1 2 एंड 3 इन ए. सो वी गेट डब्ल्यू स्क्वायर. प्लीज़ याद रखना हमारे पास डब्ल्यू स्क्वायर है, लास्ट में स्क्वायर रूट लेना है. ठीक है, तो यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज़ नॉट, बाकी सब टर्म अगर आप देख रहे हो तो माइनस 2 यू बार डॉट वी बार प्लस 2 वी बार डॉट डब्ल्यू बार प्लस 2 यू बार डॉट डब्ल्यू बार. ठीक है, तो ये और ये तो कट हो जाएगा, और इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 0. सो व्हाट इज लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू, इज नॉट वी गॉट लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इट नॉट, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 विच कम्स आउट टू बी 14. So lambda is equal to root 14. So what is the value of mod of u bar minus v bar plus w bar? It is root 14. This is your final answer. So it was not that tough, isn't it? Okay. Now let's move on to the next sum. Now this next two sums which I am doing have been asked in JEE papers. Okay. So important for JEE. Now the question says if a bar, b bar, c bar are unit vectors, then find minimum value of mod of a bar minus b bar का square plus mod of b bar minus a bar का square plus, sorry here it is c bar,
सी बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी बार माइनस ए बार का स्क्वायर। चलो ठीक है। नाउ ये सब मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था तो आई गॉट स्टक एट वन पॉइंट एंड दैट इज़ वेयर आई मेड अ नोट पॉइंट जो मैंने आगे के एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे वो अटके हुए स्टेप पे कुछ याद करो। ओके, एंड दैट इज़ वाई रिपीट अगेन, जो डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है और जितने भी नोट पॉइंट्स मैंने क्वेश्चन के साथ हाईलाइट किए हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट 10 टाइम्स, बिकॉज एक डॉट प्रोडक्ट ग्रिप में आ गया तो टेक माई वर्ड आपका 3D ज्योमेट्री, लाइन और प्लेन, ये चैप्टर भी बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट अगेन हियर इन दिस सम। एज यूजुअल वी स्टार्ट विद रिक्वायर्ड। अब इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप यहाँ पे माइन्यूट के फॉर्मूलाज डाल सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो इन द सोल्यूशन लेट्स टेक मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार माइनस सी बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी बार माइनस ए बार का स्क्वायर। चलो तीनों का फॉर्मूला डालते हैं। इज नॉट आई गेट मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में सेकेंड को ओपन करते हैं, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 2 बी बार डॉट सी बार प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2 सी बार डॉट ए बार प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ओके, सो अगर आप समझ रहे हो तो आपका ए स्क्वायर 2 टाइम रिपीट हो गया, बी स्क्वायर 2 टाइम रिपीट हो गया और सी स्क्वायर 2 टाइम रिपीट हो गया। तो हम लोग उसको ट्वाइस लिख सकते हैं और ये सब मर्ज होकर 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई गेट इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप आई गेट 2 टाइम ब्रैकेट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ओके, ये आपका एक रिजल्ट माइनस 2 ब्रैकेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। नाउ सब में क्लियरली लिखा है, तीनों यूनिट वेक्टर्स है। सो गिवन कैन आई से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट 1। तो सबके जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 डाल देते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई गेट हियर 2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। नाउ व्हाट इज 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया था। ठीक है, नाउ आई रिपीट, क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन दिख रहा है जिसमें आपका पहला वैल्यू फिक्स है। तो टेल मी इसका वैल्यू मिनिमम आने के लिए इज इट नॉट इसका वैल्यू मिनिमम होना पड़ेगा, बिकॉज मेन नंबर से जितना कम सब्ट्रैक्ट होगा उतना वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली मैंने जो मिस्टेक किया था, शायद से आप भी सोचते रहेंगे, वी टेक यहाँ पे for minimum value of a minus b, b must be minimum। पहले ये समझ दिमाग में बैठा। ओके, और यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज, नाउ ऑल ऑफ यू माइट से 0 बराबर, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू, ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0 होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट 0 नहीं होता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, अगर आपको आइडिया है तो। ओके, और डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब एंगल ऑब्ट्यूस होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया। सो मैंने जो मिस्टेक किया था, ओके, आई वुड रादर से मेरा जो रॉन्ग आंसर था, ओके, वॉज 6 माइनस 2 इंटू 0 आंसर 6। तो ये आंसर गलत था। ठीक है, और ये नसीब ख़राब ये ऑप्शन में भी था। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द थॉट अगेन। तो यहाँ तक 6 आंसर तो गलत हो गया बराबर। चलो अब क्या करें। सो हियर लेट मी गिव अ हिंट, ज़रा इसको ध्यान से देखो एंड याद करो, इसके बारे में कुछ बात हुआ था क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ओके, नाउ इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई नोट्स वेरी वेल, आपको याद आएगा दैट whenever we see a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar, then think of mod of a plus b plus c। कुछ याद आया क्या ये? ओके, और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर, बिकॉज उसके फॉर्मूला में ये चीज़ आता है। ओके, सो दिस इज़ वेयर मेरे पूरे सम का थीम चेंज। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सम में किधर भी उन्होंने a प्लस बी प्लस सी नहीं मैंशन किया है बराबर, बट टू गेट दिस आंसर आई नीड टू थिंक ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला नहीं लिखना है,
ट्विस्ट इज दिस नाउ, अगेन ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। सी प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, ओके, और सॉरी आई वांट यस मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू लाने के लिए आई नीड इन इक्वेशन ग्रेटर देन लेस देन। सो हियर द ट्विस्ट वाज मॉड, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इन इक्वेशन मुझे डालना है। तो टेल मी वन थिंग, अभी अभी मैंने बोला द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ अ वेक्टर क्या नहीं हो सकता है, इज़ नॉट, मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होता है और वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव हो सकता नहीं है। तो कहना इसे दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। आर यू गेटिंग दिस? एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस सम। नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट, हमको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इज़ नॉट ए डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, बराबर, ओके। नाउ विद दिस टेल मी, हमारे पास तो ये यूनिट वेक्टर्स है, तो कैन आई से इट इज़ 1, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, बराबर। सो 2 ब्रैकेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। नाउ व्हाट इज़ 1 प्लस 1, तो 3 हो गया, 3 प्लस 2 दिस डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। लेट्स टेक 3 ऑन द अदर साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। आर यू गेटिंग दिस? अब अगर इसको आप नंबर लाइन पे देखते हो तो ये -∞ से +∞ है, क्रिटिकल वैल्यू कितना है, -3/2। अब मुझे बताओ व्हाट एम आई सेइंग, ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा, बड़ा मतलब राइट की लेफ्ट, कॉमन सेंस आई एम टॉकिंग ऑफ राइट। तो टेल मी ये जो रीजन है इसमें मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -3/2 होगा, एवरीवन एक्सेप्ट, और मैक्सिमम वैल्यू रीजन का क्या होगा, इन्फिनिटी। नाउ लेट्स गो बैक टू द सम अगेन, जहाँ पे हम अटके थे। आई रिपीट, हमारा डिस्कशन यहाँ पे अटका था, बराबर ना। मैंने क्या बोला, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मिनिमम वैल्यू लाने के लिए इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अपने को उसका मिनिमम वैल्यू मिला ना, विच इज़ -3/2, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू इज़ -3/2। सो कैन आई से हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ a dot b plus b dot c plus c dot a is -3/2। तो एक काम करते हैं, इसको उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। तो देयरफॉर फाइनली a बार माइनस बी बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार माइनस सी बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी बार माइनस ए बार के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, कैन आई से 6 - 2 इंटू -3/2। यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 आंसर इज 9। व्हाट अ सम, ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये सम एक सिंगल अटेम्प्ट में आप नहीं समझेंगे तो ये रिकॉर्डिंग को एटलीस्ट ट्राई टू गो थ्रू, है ना, गो थ्रू एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, और हो सके तो ट्राई टू एक्सप्लेन टू योर सेल्फ, ओके, विथ अ फ्लो ऑन योर ओन, ओके। तो ये सम में आपको सीखने के लिए बहुत मिलेगा। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मेरा जेई का फेवरेट सम है, ओके। इट सेज इफ ए बार एंड बी बार are 2 unit vectors, then find minimum, sorry, if a bar and b bar are 2 unit vector inclined at an angle of 2 theta, where 0 less than equal to theta less than equal to pi, and mod of a bar minus b bar is less than 1, then find interval in which theta lies. Superb sum, let me tell you, okay। चलो जरा एक बार समझ लेते हैं हमारा रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। सो व्हाट दे वांट, फाइंड द इंटरवल इन विच थीटा लाइज। अब जब मैंने पहली बार सम सोचा ना तो मुझे लगा क्या बकवास सम है, उनको थीटा का रेंज चाहिए और क्वेश्चन में थीटा का रेंज दे दिया है, सो आंसर इज 0 to पाई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज़ नॉट जस्ट 0 to पाई, दे सेड एंड
मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन 1, मतलब ये और ये दोनों कंडीशन का कॉमन आंसर उनको चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है. एंड हियर वेर आई सी मैग्नीट्यूड, और जैसा दिखा मैग्नीट्यूड इम्प्लाइज व्हाट, स्क्वायर. तो मतलब अपने को क्या करना है पता है, इसका स्क्वायर करके सॉल्व करना है. इसमें से अपने को एक थीटा मिलेगा, वो थीटा और ये थीटा का कॉमन रीजन हमारा फाइनल आंसर होगा. और कॉमन क्यों, बिकॉज यहाँ पे एंड है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. नाउ हियर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगा. ओके. सो अगेन रिपीट द सेम थिंग. ट्रिग्नोमेट्री के नोट पॉइंट्स को रोज गो थ्रू करो. एटलीस्ट 15 डेज में एक बार गो थ्रू होना चाहिए, याद रखना. ठीक है. सो लेट्स बिगिन नाउ. कैन आई से स्क्वायरिंग बोथ द साइड, व्हाट आई गेट, ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर लेस देन 1. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. व्हाट आई गेट, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर लेस देन 1. अगर याद है तो यहाँ पे साइन आता है, बराबर ना. ओके. सो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस 1 लेस देन 1. चलो यहाँ तक ठीक है. 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा लेस देन 1. यहाँ तक समझा. ओके. लेट्स एडजस्ट द टर्म. इज़ नॉट 1 ये साइड आएगा तो 1, 2 कॉस थीटा उधर जाएगा तो ग्रेटर देन 2 कॉस थीटा. ओके. नाउ एक सेकेंड ना, यहाँ पे यस. सो व्हाट आई गेट हियर, चलो ठीक है, 2 को अदर साइड में लेके जा सकता हूँ, तो कहने से कॉस थीटा इज़ लेस देन 1/2. चलो यहाँ तक समझा. ओके. नाउ लेट मी आस्क यू, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है. ओके. जस्ट रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम एंड यू विल रियलाइज मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया यहाँ पे. ओके. आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू थिंक. जरा सोचो, इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या यहाँ पे. रीड द क्वेश्चन नाइसली. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है वहाँ पे. ओके. ठीक है. चलो अगर आपने पकड़ लिया है तो मेरे हिसाब से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मिस्टेक मैंने भी किया इज़ 2 वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा. मतलब ए और बी के बीच में कितना एंगल है, 2 थीटा. प्लीज़ रिमेंबर हियर. ओके. तो यहाँ पे गलती हो गया हमारा. कैन आई से यहाँ पे मॉड ए बार माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लेस देन 1. ये रॉन्ग है बिकॉज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार कितना है, 2 थीटा. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो आपको लिखना क्या चाहिए था, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए बार मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा की 2 थीटा 2 थीटा. प्लीज़ रिमेंबर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लेस देन 1. ठीक है. नाउ लेट्स पुट द यूनिट वेक्टर का वैल्यू. सो आई गॉट 1 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस 2 थीटा. यहाँ पे आएगा प्लस 1 लेस देन 1. इज़ नॉट आई गॉट 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा लेस देन 1. चलो अरेंज करते हैं. 1 को यहाँ पे लिया तो 1 आ जाएगा, 2 कॉस थीटा उधर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस 2 थीटा. ओके. एंड फाइनली इफ़ यू सी 2 को नीचे लेगा तो व्हाट इज़ दैट, कॉस 2 थीटा. जरा ध्यान से देखना, वी आर रीडिंग फ्रॉम हियर. कॉस 2 थीटा इज़ ग्रेटर देन 1/2. So this is the result what I got. Okay. Now यहाँ पे ये आपका ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वेशन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. मतलब यहाँ पे पहले तो वेवी कर्व नहीं दिमाग में आना चाहिए, अगर आता रहेगा तो. ओके. ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में मेक श्योर एंगल इज थीटा. इफ नॉट देन अज्यूम. ये आपका पहला स्टेप है, याद रखना. ठीक है. मेक श्योर एंगल इज थीटा. एंड नंबर 2, यूज ग्राफ ऑफ ट्रिगो टर्म्स. ओके. अगर ये दो चीज़ अगर आप समझते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू हियर इज, हम लोग क्या बोलेंगे, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा पहले तो. ठीक है. तो ये आपका सबसे बड़ा स्टार मार्क स्टेप हो गया. सो कहना इसे कॉस अल्फ़ा का वैल्यू हाफ से बड़ा. ओके. बट बिफोर दैट हम लोग पहले अल्फ़ा का एक रेंज देख लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपका थीटा का जो रेंज है वो 0 to पाई है. बट इन दिस एक्सप्रेशन हम लोग थीटा का बात कर रहे हैं कि अल्फ़ा का बात कर रहे हैं, अल्फ़ा. बट अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 2 थीटा है. लिंक समझना, हमारे पास जो कंडीशन है वो थीटा का है, बट हमें बात अल्फ़ा का करना है.
और वो अल्फ़ा 2 थीटा है, तो एक काम करते हैं इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो इफ़ आई मल्टीप्लाई बाई 2 आई गेट 2 थीटा लेस देन 2 पाई, ये समझा क्या क्या पे। और अब मैं 2 थीटा के जगह पे अल्फ़ा रिप्लेस कर देता हूँ। आर यू गेटिंग इट? मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा उसका आपको रेंज मिल गया, प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। तो अब हम लोग कॉस का ग्राफ बनाएंगे। किसके बीच में कॉस का ग्राफ बनाना है अपने को? 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अब समझा ये हमने क्यों निकाला, ओके। अगर यहाँ पे 0 टू पाई आता तो मैं 0 टू पाई बनाता, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कॉस अल्फ़ा। कॉस का ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 0 पे आएगा, फिर -1, फिर 0 और फिर 1। यहाँ तक समझा? ओके। सो ये आपका अपर लिमिट है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। चलो अब जरा वापस देखो, आपको कॉस अल्फ़ा का वैल्यू हाफ से बड़ा चाहिए। तो अगर वाई एक्सिस पे अगर हाफ देख रहे हो तो यहाँ पे हाफ आएगा। तो लेट मी ड्रॉ अ डॉटेड लाइन हियर एंड टेल मी वन थिंग, इन योर ग्राफ आपका वैल्यू हाफ से बड़ा, बड़ा मतलब ऊपर इज़ नॉट ये रीजन में आ रहा है एंड यहाँ पे ऊपर वाले रीजन में आ रहा है। सो लेट मी शो यू दिस विथ अ डिफरेंट कलर। इज़ इट नॉट? दिस इज़ द रीजन आई एम टॉकिंग ऑफ। ये आपका हाफ से बड़ा वाला रीजन है और ये भी आपका हाफ से बड़ा वाला रीजन है। ग्रेटर देन हाफ का बात हो रहा है। सो वी गॉट अल्फ़ा। सो कैन आई से फ्रॉम डायग्राम कैन वी से दैट कॉस अल्फ़ा का वैल्यू फ्रॉम डायग्राम, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू, ओके, ग्रेटर देन हाफ चाहिए था। तो अल्फ़ा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? सो आई बेटर से अल्फ़ा बिलोंग्स टू। चलो जरा मुझे इंटरवल बताओ, एंगल का इंटरवल अगर आप देख रहे हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ आएगा। टेल मी पहले क्वाड्रेंट में हाफ कौन देता है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, आपको आइडिया है तो। और ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। एंड इफ़ यू नो यूनिट सर्कल वेल, 60 डिग्री के सामने 300 डिग्री होता है, बराबर। कॉस का वैल्यू ऊपर नीचे फ्लिप होता है, याद है तो। और 300 का मतलब होता है 5 पाई बाई 3, ओके। 65 ज़ा 300, बराबर ना। मतलब ये जो वैल्यू है वो 5 पाई बाई 3 है डायग्राम में। सो विद दिस टेल मी अल्फ़ा किधर बिलोंग करता है? 0 से लेके पाई बाई 3। इज़ नॉट 0 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड है, बट पाई बाई 3 पे ओपन इंटरवल। प्लीज़ ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है। वी डोंट हैव ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन है इसलिए ओपन इंटरवल। नेक्स्ट इज़ यूनियन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इज़ नॉट, हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 पाई बाई 3 से, बराबर। और कहाँ तक जाएंगे? 2 पाई तक। अब 2 पाई पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। लेकिन एक सेकेंड, सम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो मिला मुझे अल्फ़ा मिला, मुझे तो थीटा चाहिए। सो व्हाट इज़ अल्फ़ा स्टैंड्स फॉर? 2 थीटा। 2 थीटा रेंज वही रहेगा, यूनियन 5 पाई बाई 3 से लेके 2 पाई तक, बट हमको तो थीटा चाहिए। सो व्हाट इज़ थीटा बिलोंग्स टू? डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 0 का 0 ही रहेगा, ये पाई बाई 6 आ जाएगा। पाई बाई 6 मतलब 30, यूनियन ये 2 गया तो यहाँ पे आएगा 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 अगर आप समझ रहे हो तो 150 होता है, एंड यहाँ से 2 गया तो पाई। एंड इफ़ यू सी नाउ, आपका जो ओरिजिनल थीटा था वो 0 और 180 के बीच में था, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट द कंडीशन फॉर थीटा। चलो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग था, वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, ओके। सम का मेन क्लिकिंग पॉइंट कौन सा था? स्टार्टिंग पॉइंट रिक्वायर्ड, पहले व्हाट वाज द रिक्वायर्ड? इंटरवल विथ थीटा लाइज, बराबर। तो मुझे थीटा चाहिए। अब इंटरवल बोला तो अब थीटा पे फोकस करते हैं। तो थीटा का इंटरवल उन्होंने दिया है, लेकिन उसके साथ और क्या कंडीशन दिया है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मेरा थॉट क्या बोला? मैग्नीट्यूड दिखा तो स्क्वायर कर। चलो हमने स्क्वायर किया, यहाँ तक आया। यहाँ पे कहाँ तक अटकते थे? यहाँ पे अटकते थे। आइडियली हम लोग यहाँ पे थीटा लिखते हैं ना, बट क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिया? एंगल बिटवीन द वेक्टर इज़ 2 थीटा। तो हमने यहाँ पे 2 थीटा लिखना है, ध्यान रखना। सो 2 थीटा लिखा, उसको सॉल्व किया। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इनिक्वेशन हुआ तो पहले जो एंगल है उसको एक सिंपल एंगल बनाओ, ओके। नहीं तो फिर आपको कॉस 2 थीटा का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 थीटा को अल्फा अज्यूम कर दिया, ठीक है। तो जिससे ये जो इनिक्वेशन था वो बन गया कॉस अल्फा ग्रेटर देन हाफ। अब क्वेश्चन है कि ये जो मुझे बनाना है उसका रेंज क्या है? तो रेंज के लिए मैंने थीटा का हेल्प लिया, बट बात थीटा का नहीं करना है, बात तो अल्फ़ा का करना है। और अल्फ़ा किस पे डिपेंड करता है? 2 थीटा पे। तो हमने इसको 2 थीटा बनाया और 2 थीटा की जगह पे हाफ अल्फ़ा लिख दिया। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई ग्राफ 0 और 2 पाई के बीच में बना। तो मैंने ग्राफ 0 से लेके 2 पाई के बीच में बनाया।
नाउ कॉस का ग्राफ और यहाँ पे हाफ बना दिया। अब आपको हाफ से ज़्यादा चाहिए, आप समझ रहे हो क्या, और हाफ से ज़्यादा मतलब ऊपर वाला रीजन। नाउ आई वांट दिस एंगल। नाउ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें हाफ कौन देता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री बना दिया। सेम ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें हाफ कौन देता है 60 के सामने वाला एंगल विच इज़ 300। जिन्होंने सर्कल प्रैक्टिस किया रहेगा आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो मुझे यहाँ पे रेंज मिल गया 0 से लेके π/3 और 5π/3 से लेके 2π, लेकिन ये जो आंसर मिला वो अल्फ़ा का है। अपने को अल्फ़ा नहीं चाहिए, अपने को थीटा चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, अल्फ़ा इज़ 2 थीटा, और 2 थीटा में 2 को अगर मैं डिवाइड करेगा तो आई विल गेट द आंसर। आर यू गेटिंग इट? सो इट इज़ एक्सेलेंट सम फॉर योर जेई, ठीक है। नेक्स्ट लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन मैग्नीट्यूड रिलेटेड नहीं है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पे। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। Yeah, the question is, if A, B, C, D are any 4 points in space, मतलब एक लाइन में हो सकता है या किधर भी हो सकता है रैंडमली, देन शो दैट AB बार डॉट CD बार प्लस BC बार डॉट AD बार प्लस CA बार डॉट BD बार इज इक्वल टू 0 बार। ओके, अब ये सम जब मैंने पहली बार किया था, अगेन आई गॉट स्टक। है बहुत सिंपल सा सम बट मैं फंस गया, ठीक है। तो इसका जरा कंक्लूजन समझना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वायर्ड क्या बोलता है, ये शो करो। ओके, शो करो मतलब LHS इक्वल टू RHS। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ कौन से साइड से स्टार्ट करेंगे, तो कैन आई से रिक्वायर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे LHS से। ओके, सो लेट अस टेक LHS क्या है, AB बार डॉट CD बार प्लस BC बार डॉट AD बार प्लस CA बार डॉट BD बार, बराबर। अब जरा सम में देखते हैं अपने पास ये वेक्टर्स है कि नहीं, ठीक है। तो जैसा मैंने सम में देखा, सम में तो कुछ दिया ही नहीं है, ना एंगल दिया है ना वैल्यू दिया है, नथिंग इज गिवन इन द सम, तो यहाँ पे तो हम फंस गए। सो लेट्स गो बैक टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। और ऐसे केस में जब वैल्यू नहीं देते तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हैं। सो माय नेक्स्ट थॉट वाज, लेट अस डू, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर में लिख देते हैं, ठीक है। सो कैन वी टेक दिस एज B बार माइनस A बार, इसको D माइनस C माइनस B, A माइनस D ऐसा लिख सकते हैं। बट ऐसे केस में अब ध्यान से सुनना, आप ये B माइनस A करके आंसर ला सकते हो, बराबर। बट इन सच केस वी कैन कंसीडर एनी वन पॉइंट एज ओरिजिन। ओके, और ये याद रखना अपने को थियोरम्स में भी काम लगेगा, ठीक है। बिकॉज थियोरम्स में कंडीशंस वैल्यूज़ नहीं होते हैं, बराबर, एवरीथिंग इज आवर हैंड, तो हम लोग कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं। तो सिंस नथिंग इज मैंशनड, सब में देखो पॉइंट के लिए कुछ नहीं बोला है, खाली इतना बोला है कि 4 पॉइंट है। ओके, अब 4 पॉइंट है तो वो तो कहाँ पे भी हो सकते हैं, बराबर। सो विद दैट नॉलेज हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक पॉइंट को ओरिजिन ले लेंगे, जिससे कैलकुलेशन को एक स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी डू हियर इज, लेट अस सी कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इफ़ यू सी हियर, आपका A 1 बार, 2 बार और 3 बार यूज़ हुआ, C भी 3 बार यूज़ हो रहा है, B भी 3 बार, D भी 3 बार, मतलब चॉइस इज योर्स, आपको जिसको ओरिजिन लेना है लो। बट आइडियली क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसको ओरिजिन लेना चाहिए, ठीक है। सो हियर लेट अस टेक A एज ओरिजिन। ओके, हम A को अगर ओरिजिन लेते हैं तो AB बार, अगर आप समझ रहे हो तो B बार माइनस A बार होता है, लेकिन A तो ओरिजिन है, मतलब वो तो 0 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B बार। ये आपको समझा। सो विद दिस कैन आई से, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, AB बार क्या हो जाएगा, B बार डॉट D बार माइनस C बार, ये पहला टर्म, प्लस कैन आई से दिस इज C बार माइनस D बार डॉट AD बार क्या हो जाएगा, D बार हो जाएगा, प्लस नाउ दिस वन इट इज CA बार। प्लीज़ ध्यान रखना CA मतलब उल्टा है, एंड दैट इज़ वाई माइनस C बार, जरा ये स्टार मार्क रख देना, डॉट D बार माइनस B बार। यहाँ तक समझा। एंड नाउ द सम इज़ ओवर। टेल मी, अगर मैं आपको वैल्यू नहीं देता हूँ तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट, ऑब्वियसली विल ओपन द ब्रैकेट। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड सी व्हाट आई गेट हियर। एम आई नॉट गोइंग टू गेट B बार डॉट D बार
माइनस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट डी बार माइनस बी बार डॉट डी बार माइनस सी बार डॉट डी बार प्लस सी बार डॉट बी बार। तो अगर आप देख रहे हो तो सी डॉट बी डॉट सी कैंसिल, सी डॉट डी कैंसिल एंड बी डॉट डी कैंसिल, सब कैंसिल, तो आंसर इज ज़ीरो। और प्लीज़ याद रखना यहाँ पे ज़ीरो बार नहीं, बिकॉज आप जो ऐड कर रहे हो वो एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर होता है। सो ऑप्शन में ज़ीरो भी था, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या सीखने मिला, ये सम में एक सिंपल सा सम था। यहाँ पे हमको ये सीखने मिला दैट अगर मैं बोलूँ ए बी सी डी आर 4 रैंडम पॉइंट्स और अगर मैं कुछ कंडीशन ना दूँ तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर कर सकते हो, जिससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, इन केस अगर आपने ओरिजिन नहीं लिया होता तो भी आप जरा घर पे ओपन करना, आपको सेम आंसर मिलेगा, बट द नंबर ऑफ फैक्टर्स वुड बी मोर, ठीक है। So with this, let's move on to the last question of this group, that is question number 8. Now this again is my favorite question. Now they say let ABCD be a parallelogram such that AB bar is Q bar and AD bar is P bar. मतलब उन्होंने assumption दे दिया, ठीक है। And angle BAD be an acute angle, full stop, if R bar is the vector that coincides मतलब overlap, okay, you can also call collinear with the altitude directed from vertex B to side AD, then show that R bar is equal to minus Q bar plus P bar dot Q bar upon Q bar dot Q bar into P bar dot P bar dot P bar into P bar. Now before I start the sum, I just want you to pause this video, okay, and try this sum on your own, okay. 10 मिनट जरा इस पर टाइम स्पेंड करना और इसका आंसर निकालने के लिए यू कैन रिफ़र माई 7 नोट पॉइंट्स विच आई गेव यू। वहाँ से यहाँ पे कीवर्ड ले लेके अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद से आपको कुछ आएगा, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ ट्राई दिस। वंस दैट इज़ डन यू कैन कंटिन्यू विद दिस सोल्यूशन एंड सी आप कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट दिस सम का आंसर। हियर द रिक्वायर्ड इज़ आर बार इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला, मतलब मुझे वेक्टर आर बार लाना है, ओके, यहाँ पे शो करना है, बट ऑब्वियसली एलएचएस आ चलेंगे, बट उसके लिए समझना पड़ेगा बराबर। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आर बार। तो सबने क्लियरली लिखा है आर बार इज़ अ वेक्टर दैट कोइंसाइड्स विथ ऑल्टीट्यूड डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए डी। बट ये बी ए डी बाय द वे है क्या, तो ज़रा और ऊपर देखते सब में क्या लिखा है, अरे ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल बी ए डी इज़ एक्यूट। सी बहुत अच्छे अच्छे कंडीशंस दिए यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन विद द डायग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आर बार और फिर हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। सो सोल्यूशन में हम लोग एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है। चलो हमने पैरेललोग्राम बना दिया। लेट अस कॉल दिस एज ए बी सी डी बराबर ए बी सी डी, ओके। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एंगल बी ए डी बी एन एक्यूट एंगल। अब ध्यान से देखो बी ए डी एक्यूट एंगल है, यस, नो प्रॉब्लम, ओके। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, आर बार बी अ वेक्टर दैट कोइंसाइड्स विथ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हाइट हम कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर, कहाँ से ड्रॉप करते हैं, फ्रॉम बी। अब यहाँ पे मैं अपना थोड़ा डायग्राम में चेंज करता हूँ। ऑब्वियसली अगर मुझे हाइट दिखाना है तो मैं बी से दिखा सकता हूँ, आई कैन शो परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम दिस बराबर, बट ये थोड़ा अजीब दिखेगा। तो एक काम करते हैं, हम बी और डी का पोजीशन बदल देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बी ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम और ये एक्यूट एंगल का एक्यूट एंगल है बराबर। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेट अस कॉल दिस एज एम, और ये आपका आर बार है और डायरेक्शन भी उन्होंने क्या बोला है, बी टू
द फुट. ओके, सो डायग्राम में आई होप गॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ आर बार. अब मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. दिस दे कॉल इट एज, आपका वेक्टर है क्यू बार और ये आपका है पी बार. ठीक है ना. यहाँ पे शायद से आपको ए सी बार निकालने का मन होता रहेगा, बट दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमारा आर बार पे. तो अगर आप आर बार पे फोकस करते हो तो आर यू नॉट थिंकिंग हियर, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, टू गेट आर बार थिंक ऑफ ट्राइंगल लॉ. अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे मुझे ट्राइंगल लॉ दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर आ रहा है. बट ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, मेरे पास 3 वेक्टर होने चाहिए. अब ये दोनों वेक्टर का तो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन नहीं है. तो एक काम करते हैं, चॉइस अपना है. आप एम ए भी ले सकते हो और ए एम भी ले सकते हो. चॉइस इज योर्स. अब कॉमन सेंस, अगर वो पी के डायरेक्शन में है तो ए एम लेना ज़्यादा बेटर होगा, तो हम ए एम लेते हैं. ठीक है. सो नाउ ऑल सेट. कैन आई से कंसीडर ट्राइंगल ए बी एम. ठीक है. अब इसमें ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं. ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, अगर याद है तो, ट्राई टू कवर 2 साइड्स एंड द थर्ड साइड इज रिजल्टेंट. अगर वो उल्टा डायरेक्शन में होगा तो दिख रहा है कि नहीं है. ठीक है. सो हम 2 साइड कवर किया, तीसरा रिजल्टेंट है. सो कैन आई से हियर ए एम बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी एम बार. बट अपने को कौन सा वेक्टर लेना है, बी एम बार लेना है. सो व्हाट इज बी एम बार इज इक्वल टू, इज नॉट बी एम बार, इज माइनस ए बी बार प्लस ए एम बार. अब जरा ध्यान से डायग्राम में देखो, ए बी बार का वैल्यू दे दिया है माइनस क्यू बार प्लस ए एम बार, और ये क्या है, आर बार. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे अपना रिजल्ट ए रेडी हो गया. ओके. और ये हमारे आंसर से मैच भी हो रहा है. देखो माइनस क्यू मैच हो गया. अब मुझे ए एम चाहिए ना. अगर आपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ढंग से पढ़ा है, सो कैन यू जस्ट टेल मी, ये जो ए एम है यहाँ पे हमको क्या याद आना चाहिए इन दिस डायग्राम इज़ नॉट, यहाँ पे हमको याद आएगा प्रोजेक्शन. किसका किसके ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार. एंड दैट इज़ इट. मेरे हिसाब से सम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. सो हियर आई वांटेड ए एम बार. सो टेल मी नाउ, ए एम बार इज़ नॉट, इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर से निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड कौन ला के देगा, प्रोजेक्शन. बराबर. तो यहाँ पे मॉड इनटू व्हाट, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए एम बार. बट यूनिट वेक्टर तो है नहीं अपने पास, तो जरा डायग्राम वापस देखो. टेल मी ए एम इज अलॉन्ग व्हाट, पी बार. ठीक है. सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर मॉड ऑफ ए एम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैन आई से प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी बार. और काम खत्म. व्हाट इज प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, जो पीछे वो नीचे. बराबर. बट मैग्नीट्यूड आएगा, आपको आइडिया है तो. ओके. और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो अगर आप एक काम करो, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, कैन आई से क्यू डॉट पी अपॉन मॉड ऑफ पी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और यहाँ पे पी बार आ जाएगा. बराबर. एंड इज इट नॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अगर आपको आइडिया है तो वो वेक्टर डॉट वेक्टर होता है. ओके. तो कैन वी राइट दिस एज नथिंग बट क्यू बार डॉट पी बार अपॉन पी बार डॉट पी बार इंटू पी बार, रिजल्ट बी. और मेरे हिसाब से आंसर रेडी. सब्सटीट्यूट बी इन ए, वी गॉट आर बार इज इक्वल टू माइनस क्यू बार प्लस, इज नॉट ए एम बार की जगह पे क्या आएगा, क्यू डॉट पी अपॉन पी डॉट पी इंटू पी बार. हैंस प्रूव्ड. ठीक है. अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, इसमें हमने जितने भी सम किए, दैट इज़ टिपिकल टाइप 1 और टिपिकल टाइप 2, मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा दैट दो सम्स प्लीज़ राइट इट डाउन. रीड नहीं करना, रीड तो पहले करना ही करना है, राइट इट डाउन 2 टाइम्स. बिकॉज अगर ये 2 टिपिकल केसेस अगर आपके हाथ में आ गए, यू आर डन विद डॉट प्रोडक्ट. अब कोई भी टाइप का सम आए, आई एम डैम श्योर आप उसको मैनेज कर लेगा. ठीक है. सो विद दिस आई एम एंडिंग माई दिस वीडियो. प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन वेल. आई रिपीट, डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन आप ध्यान से लिखो, टिपिकल टाइप्स को 2-3 बार लिख लेना. ठीक है. थैंक यू सो मच.